ایکسکیویشن ٹیم کو جنگل کے بیچوں بیچ زمین کے اندر جاتا ہوا ایک پائپ دکھائی دیتا ہے۔ یہ کافی حیرانی کی بات تھی کیونکہ جہاں پر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ایک پرانا ڈیڈ وولکینو تھا جس کو پوری طرح سے پیڑ پودے اور گھاس پھوس نے کور کر لیا تھا۔ اب اس پائپ کے اندر دیکھنے کے لیے اس کے اندر نائٹ ویژن کیمرہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب کیمرہ اندر بھیجا گیا تو ٹھیک 30 میٹر نیچے جانے کے بعد سامنے ایک بہت بڑے ٹنل کا منظر دکھائی دیا۔ یہ دن تھا 7 مارچ سال 2018 کا اور ایکسکیویشن ٹیم ساؤتھ پولینڈ کے شہر لوبان کے قریب زمین سے ٹھیک 30 میٹر نیچے کچھ بہت زیادہ انوکھا اور حیرت انگیز دیکھنے والی تھی۔ اس ٹنل کے اندر جب کیمرہ گھمایا گیا تو وہاں پر ان کو حیرت انگیز طور پر ایک پٹری دکھائی دی۔ ابھی وہ لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ یہاں پر پٹری کا کیا کام ہے کہ دور کھڑی مائن کارٹ نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جب لوکل اتھارٹیز کو معلوم ہوا تو وہ ورلڈ وار 2 میں کھو جانے والے ایک ہڈن بنکر کا میپ لے کر آئے اور پتہ چلا کہ یہ ٹنل قریباً 80 سال پہلے یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے دور میں بنایا گیا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے لوکل اتھارٹیز اسی ٹنل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس ٹنل کی انٹرنس کو بہت بھاری پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا جس کے آگے 80 سالوں کی گھاس پھوس اور مٹی نے اس کی انٹرنس کے نشانات بھی مٹا دیے تھے، لیکن اندر سے یہ ٹنل ہو بہو میپ کے اوپر دکھنے والے اس بنکر سے میچ کر رہی تھی۔ اس کے اندر پٹری اور مائن کارٹ دیکھ کر بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹنل ورلڈ وار 2 میں سامان کو سٹور کرنے کے کام آتی تھی۔ ٹنل میں موجود اکثر لوہے کے سامان کو زنگ لگ چکا تھا، یہاں سے بیلچا، ڈرل بٹس اور کڈال جیسے ٹولز اسی حالت میں ملے تھے جیسے ان کو 80 سال پہلے نارویجین ملٹری کے سولجرز نے رکھا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران نازی جرمنی اور جاپان جیسے کنٹریز سے مقابلہ تھا امریکہ اور برٹین جیسے ملکوں کا، اور اس دوران ہٹلر کی فوج نے ہزاروں کی تعداد میں انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے تھے۔ شروعات بے شک ہٹلر نے کی تھی، لیکن بعد میں الائیڈ فورسز نے بھی انڈر گراؤنڈ ٹنلز اور بنکرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران بنکرز کافی زیادہ اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتے تھے اور ان کا مقصد ڈیفنس اور اوفینس دونوں تھا، یعنی کہ کہیں پر ان کا کام دشمن کے حملوں سے بچنا ہوتا تھا اور کہیں پر یہ دشمن پر حملہ کرنے کے کام آتے تھے۔ یہ بنکرز دشمن کی ایئر سٹرائکس اور آرٹلری شیلز سے حفاظت کرتے تھے اور سولجرز کو ایک سیکیور بیس فراہم کرتے تھے۔ ڈیفینسو بنکرز کو فرنٹ لائن سے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ وہ دشمن کے حملوں کو روک سکیں، جیسے جرمنی کی اٹلانٹک وال جو کہ الائیڈ فورسز کے حملوں کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بنکرز کو پلاننگ کے لیے یوز کیا گیا جہاں سے کمانڈرز اپنے آپریشنز کو سیکریٹلی مینج کرتے تھے۔ ورلڈ وار 2 میں اتنے زیادہ بنکرز اور وال رومز کنسٹرکٹ کیے گئے تھے کہ آج بھی ان کی گنتی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں بنکرز ایسے ہیں جو آج بھی زمین کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہیں، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں الائیڈ فورسز اور ایکسس فورسز نے انڈر گراؤنڈ بنکرز کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں لوہے اور سیمنٹ کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ان بنکرز کو بنانے کے لیے آج کے دور کے مطابق $500 بلین سے لے کر $1 ٹریلین تک خرچہ آیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی افغانستان میں چلنے والی جنگ پر $300 ملین ایک دن میں خرچہ آتا تھا۔ تو ورلڈ وار 2 میں بنکرز بنانے کے لیے روزانہ $460 ملین کا خرچہ آتا تھا۔ یہ تو وہ خرچہ ہے جو صرف کنسٹرکشن پر ہوا تھا۔ ورلڈ وار 2 میں ہونے والے خرچے میں مین پاور، لاجسٹکس اور ایمونیشن پر ہونے والے خرچے کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو آئیے اتہاس کی تلخ یادوں میں چل کے چند بنکرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دی اٹلانٹک وال ایک بہت بڑا کوسٹل ڈیفنس سسٹم تھا جو نازی جرمنی نے ورلڈ وار 2 کے دوران بنایا۔ یہ 2400 مائلز یعنی کہ 3800 کلومیٹر تک یورپ کے کوسٹ لائن میں پھیلا ہوا تھا، جس کا مقصد سمندر سے ہونے والے الائیڈ فورسز کے حملوں سے بچنا تھا۔ 1940 سے 1944 کے درمیان بنائے گئے اس سسٹم میں ہزاروں بنکرز، ایمونیشن ڈپوز اور کئی قلعے شامل تھے۔ اس وقت ہٹلر کا فرانس کے کئی علاقوں پر بھی قبضہ تھا۔ اٹلانٹک وال کا ایک حصہ ناردرن فرانس کے علاقے نارمنڈی میں بھی پھیلا ہوا تھا، جہاں لاجس سرمر نامی آرٹلری بیٹری بھی انسٹال کی گئی تھی۔ یہ بنکرز ہیوی بمبارڈمنٹس کو فیس کرنے اور ڈیفینسو فائر دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ ناروے کی بات کی جائے تو اس کا نچلا حصہ نارتھ اٹلانٹک اوشن سے آنے والی الائیڈ فورسز کو روکنے کے کام آ سکتا تھا، تبھی ہٹلر نے یہاں پر بھی اٹلانٹک وال کے کچھ حصے گاڑے ہوئے تھے۔
यहाँ पर क्रिस्टियन सैंड जैसे फोर्ट्रेसेस नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नीदरलैंड्स भी उस वक्त नाजी के कंट्रोल में था और यहाँ पर भी नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफ अनियन नामी बंकर्स बनाए गए थे। नाजी जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड डिपोज, बंकर्स, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, इनको फ्रिट्ज टॉड नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था। 2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे ये सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए। आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाली इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे की याद दिलाते हैं। जिस वक्त हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई थी तो अलाइड फोर्सेस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1942 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अमेरिका और बरतानिया दोनों की आंखें खोलकर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस जो अलाइड पावर का हिस्सा थी, उन्होंने फ्रांस के इलाके डी एब्स पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डी एब रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वो काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर्स ने अलाइड अटैक्स को बुरी तरह से नाकाम बना दिया। अलाइड ट्रूप्स जो कोस्टलैंड पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो नाजी जर्मनी के पावरफुल क्रॉस अटैक का शिकार बन गए और ये अलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतनी ज्यादा तवक्को नहीं थी। इस हमले में अलाइड फोर्सेस के 6,000 सोल्जर्स आए थे, जिनमें से 3600 के करीब या तो मारे गए या फिर नाजी जर्मनी के हाथों पकड़े गए। डी एप रेड के बाद अलाइड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है तो उन्हें भी बंकर्स और डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग पर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लिहाजा यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन और कनाडा में भी बंकर्स पर भारी मिकदार में खर्चा किया गया। चर्चिल्स वॉर रूम्स एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स था जो कि लंदन में बना था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान बरतानिया के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल का हेडक्वार्टर था। ये कॉम्प्लेक्स स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया था कि नाजी जर्मनी की एयर स्ट्राइक्स से महफूज रहा जा सके। फ्रांस की मेजिनो लाइन जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, यहाँ भी नए अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स बनाए गए। फ्रांस को यकीन था कि ये सिस्टम उनकी हिफाजत करेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने मेजिनो लाइन को साइडलाइन करते हुए बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में जापान, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दे रहा था, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स तामीर किए गए। हिरोशिमा के अंडर भी एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया गया, जिसमें हिडन आर्टिलरी पोजीशंस, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए। ये टनल्स अलाइड फोर्सेस के हमले के वक्त सरप्राइज अटैक के लिए यूज होते थे। ओकिनावा के बंकर्स और टनल्स ज्यादा पेचीदा और बड़े थे, जहां हजारों जापानीज सोल्जर्स डिफेंस और हमला करने के लिए पोजीशन में रहते थे। ये डिफेंसिव सिस्टम ज्यादा से ज्यादा अलाइड फोर्सेस को मौत के घाट उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान बनाए जाने वाले तमाम बंकर्स की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक तो जंग का टाइम और ऊपर से हर चीज की शॉर्टेज, और इन सब चीजों के साथ साथ हर गुजरते लम्हे एयर स्ट्राइक्स का खतरा रहता था। और तो और अंडरग्राउंड बंकर्स की कंस्ट्रक्शन में दम घुटने से वर्कर्स की मौत भी हो जाती थी। इन सब चैलेंजेस के बावजूद न सिर्फ हजारों बंकर्स बनाए गए, बल्कि इनमें से कई बंकर्स तो आज भी जमीन के नीचे वैसी हालत में ही छुपे हुए हैं, खास तौर पर जो एक्सेस पावर कंट्रीज में बनाए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनका राज वहां से खत्म हुआ, उस वक्त तक या तो वहां से सोल्जर्स बंकर्स की एंट्रेंस को बंद करके वहां से भाग गए या फिर उसी बंकर के अंदर मर गए। लिहाजा किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पर बना था। लेकिन एक तरीका था इन तमाम बंकर्स और टनल्स की लोकेशन का पता लगाने का, और वो था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी या तो जला दिए गए या फिर किसी ऐसी लोकेशन पर छुपा दिए गए जिसके बारे में सिर्फ उसी इंसान को पता था जिसने ये डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे। और खास तौर पे इन
इन बंकर्स को कैमोफ्लाज करके बनाया जाता, यानी नेचुरल टेरेन में इनको ऐसे बनाया जाता था कि किसी भी इंसान को पता ना चल सके कि यहाँ पर मिलिट्री बंकर है। और यही वजह थी कि जंग खत्म होने के बाद ये बंकर्स छुपे के छुपे रह गए। अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम्स भी बनाए गए जो कि ताज़ा हवा को बंकर्स के अंदर लेकर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बंकर से बाहर भी निकालते थे। नाज़ी लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने राज में कई बंकर्स का सहारा लिया। उनके ज़ेरे इस्तेमाल मशहूर ज़माना बंकर्स थे ईगल्स नेस्ट, जिसे केलस्टाइन हाउस भी कहा जाता है। ये जर्मनी के सेल्सबर्ग एरिया में 6000 फीट की ऊंचाई पर नाज़ी लीडरशिप की सीक्रेट मीटिंग्स और रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया था। कंक्रीट और ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हुए इस बंकर में बॉम्ब प्रूफ जैसी खसूसियात रखी गई थी। हिटलर का दूसरा मशहूर बंकर बर्लिन में फ्यूरर बंकर के नाम से मौजूद बंकर है। 1944 में बनाया जाने वाला ये बंकर सिर्फ एक बंकर नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर था। बंकर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो एलाइड फोर्सेस के बॉम्ब्स और आर्टिलरी से महफूज रह सके। यहाँ हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और 30 अप्रैल 1945 को अपनी जिंदगी खत्म की। और आज इस बंकर का कोई भी हिस्सा सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वुल्फ्स लेयर नामी बंकर कम बल्कि एक किला ज्यादा लगता है, जो कि नॉर्थ जर्मनी में मौजूद एक जंगल के बीचों बीच मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके चारों तरफ ऑफिसेज मौजूद थे और इसकी कंक्रीट की छत करीबन 7 मीटर मोटी बनाई गई थी। एक बजरी की पूरी लेयर पूरे के पूरे बंकर को एयर स्ट्राइक से महफूज रखती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो कि केमिकल अटैक से भी बचाता था। किसी पुराने इजिप्शियन टॉम्ब की तरह दिखने वाला ये बंकर इतना ज्यादा मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना मुमकिन ही नहीं है। और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि इसमें एक भी खिड़की नहीं रखी गई थी। और यहाँ एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे के पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के अंदर इनविजिबल किया गया था। इसकी छत के ऊपर मिट्टी डालकर वही पेड़ पौधे लगाए गए थे जो बाकी जंगल में लगे हुए थे। इसी वजह से जब ऊपर से कोई भी जहाज गुजरता था तो उसे जरा बराबर भी शक नहीं होता था कि यहाँ नीचे इस जंगल में हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद हो सकता है। एलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नाजी जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 सोल्जर्स, 5,000 से ज्यादा शिप्स और लगभग 11,000 एयरक्राफ्ट यूज हुए। ये 6 जून 1944 का दिन था जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी के सोल्जर्स ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से एलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग्स और रिसोर्सेज उतने इफेक्टिव नहीं रहे। एलाइड फोर्सेस की एयर स्ट्राइक्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंसिव सिस्टम का खूब मुकाबला किया। शुरू में एलाइड फोर्सेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार वो नाजी जर्मनी का पूरे यूरोप पर कंट्रोल तोड़ने में कामयाब हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।